Hello everyone and welcome to this video. In this video today we are going to discuss about ecosystem and energy flow in ecosystem. So this video is going to be in two different languages, English and Hindi, so that it will become easy to understood. So दो लैंग्वेज में होने वाला है इसका वीडियो, इंग्लिश और हिंदी. डिस्कस करेंगे हम इकोसिस्टम के बारे में. इकोसिस्टम एंड एनर्जी फ्लो इन इकोसिस्टम. एनर्जी फ्लो in ecosystem. Okay, so what is ecosystem? First of all we have to know that what does this ecosystem means. Today our topic is how energy flows from one trophic level to another trophic level, or how in ecosystem energy flow occurs. एक इकोसिस्टम में एनर्जी फ्लो कैसे होता है आज हम जानेंगे, लेकिन उससे पहले हमको इकोसिस्टम क्या है जानना पड़ेगा. व्हाट इज द मीनिंग ऑफ इकोसिस्टम? फर्स्ट ऑफ ऑल यू हैव टू नो दैट व्हाट इज द मीनिंग ऑफ दिस इकोसिस्टम. सी, ecosystem refers to, it is, if we write the definition of ecosystem, then you write ecosystem is a natural unit. Okay, ecosystem is a natural unit consisting of consisting consisting of biotic communities and their abiotic factor, or you may write abiotic environment. Okay, abiotic environment or abiotic factor. So what is this ecosystem means? Ecosystem का मतलब क्या है? Ecosystem is a natural unit consisting of biotic community and their abiotic environment. Biotic community refers to all living organisms. Okay, biotic community refers to all living organisms, that is your plants, animals, microbes, etc., etc. All living organisms, all living components of the ecosystem, all living components of our environment is considered in the biotic community. Then abiotic environment. Abiotic environment refers to the non-living component. The non-living part of the environment is known as your abiotic environment. In this, your water, then your soil, then air, temperature, topography, etc. These are comes in the abiotic environment. So ये रहा इकोसिस्टम का मतलब. इकोसिस्टम क्या होता है? हमारे धरती पे, हमारे अर्थ पे हम जो लिविंग थिंग्स रह रहे हैं, ये लिविंग थिंग्स किसके ऊपर डिपेंड कर रहे हैं? नॉन लिविंग थिंग्स के ऊपर. सो लिविंग थिंग्स एंड नॉन लिविंग थिंग्स डिपेंड्स अपॉन ईच अदर and they depend upon each other so that their survival become easy. So this living component and non-living component, when we together consider these two things, then this is called your ecosystem. जब हम living component, plant, animals, etc. non-living component को एक साथ together consist करते हैं, together हम देखते हैं, तो भी उसको हम इकोसिस्टम कहते हैं. सो इट इज़ ए नेचुरल यूनिट occurs in the nature consisting of biotic community and their abiotic environment. और ये इकोसिस्टम, इकोलॉजी नाम का और एक वर्ड है, वो इससे थोड़ा डिफरेंट है. इकोलॉजी अगर हम कहते हैं इकोलॉजी, सो दिस इकोलॉजी वर्ड इज डिफर फ्रॉम द इकोसिस्टम. व्हाट इज द डेफिनेशन ऑफ इकोलॉजी? इफ यू राइट, इकोलॉजी इज द स्टडी ऑफ इंटर रिलेशन. इफ यू राइट दियर, इकोलॉजी इज द स्टडी of interrelationship between living organisms and their non-living environment or factor, anything. So what is the meaning of ecology? Ecology is the study of interrelationship. That means it is a branch of science which deals with the study of living organisms and non-living organisms, how depends upon each other. So ecology एक branch of science है, ये साइंस का एक ब्रांच है जो स्टडी करता है कि कैसे लिविंग ऑर्गेनिज्म नॉन लिविंग और कंपोनेंट के ऊपर डिपेंड करके चलते हैं. लेकिन इकोसिस्टम हमको क्या दर्शाता है? जो एक एनवायरनमेंट में लिविंग थिंग्स और नॉन लिविंग थिंग्स जहाँ पे दोनों मिल के चल रहे हैं, उस जगह को हम कहेंगे इकोसिस्टम. ठीक है, मान लो एक ग्रासलैंड है, ग्रासलैंड में ग्रासेस हैं, योर सॉइल है, सॉइल, एयर, विंड गया, तुम्हारा टेम्परेचर गया, ये सब जाएगा तुम्हारा एबायोटिक कंपोनेंट. एक ग्रासलैंड, अगर मैं एक एग्जाम्पल लूँगा, एक ग्रासलैंड में तुम्हारे सॉइल प्रेजेंट है, एयर प्रेजेंट है, वाटर प्रेजेंट है, बारिश होता है, वाटर प्रेजेंट है, उधर का एक पर्टिकुलर टेम्परेचर है. तो ये सब गया तुम्हारा एबायोटिक कंपोनेंट में.
वैसे ग्रासलैंड में बहुत सारे ग्रासेस हैं, ग्रास ऊपर है, फ्रॉग हैं, रैबिट्स भी हो सकते हैं, कुछ भी हो, वो सब जो प्लांट्स एंड एनिमल्स रहते हैं वो जाते हैं तुम्हारे बायोटिक कंपोनेंट में। सो ये बायोटिक एंड एबायोटिक कंपोनेंट को जब हम टुगेदर कंसिस्ट करते हैं तो हम उसको इकोसिस्टम से कहते हैं, इट इज़ ए इकोसिस्टम। सो ग्रासलैंड इज ए एग्जाम्पल ऑफ इकोसिस्टम, इट इज़ ए ग्रासलैंड इकोसिस्टम। Just like that, a forest ecosystem, a pond ecosystem, whatever may be, a xerophytic sand ecosystem, desert ecosystem, एक्सेट्रा एक्सेट्रा, ओशन इकोसिस्टम। सो इकोसिस्टम का मतलब क्या है अब हम समझ गए। इकोसिस्टम क्या है? जहाँ पे लिविंग ऑर्गेनिज्म और नॉन लिविंग कंपोनेंट टुगेदर रहते हैं, उस जगह को हम क्या कहते हैं? इकोसिस्टम कहते हैं। लेकिन इकोलॉजी क्या है? ये स्टडी ऑफ इंटर रिलेशनशिप, वो कैसे डिपेंड करते हैं, कैसे क्या वो करते हैं, तो उनका जब हम स्टडी करते हैं तब उसको हम इकोलॉजी कहते हैं। सो ये हो गया इकोसिस्टम। इट इज़ अ नेचुरल यूनिट कंसिस्ट ऑफ बायोटिक कम्युनिटी एंड देयर abiotic factor or abiotic environment. So in this ecosystem, let us discuss an example of ecosystem. मैंने ये जो ग्रासलैंड का, ग्रासलैंड में हमारा बायोटिक कंपोनेंट क्या क्या है? फर्स्ट आता है बायोटिक कंपोनेंट हमारा ग्रासेस। ये ग्रासेस को खाता कौन है? ग्रास होपर। मान लीजिए ग्रास होपर को खाता कौन है? फ्रॉग को देन खाता कौन है? मैन generally snake. So this is an example of grassland ecosystem which starts from grass. Then grass is eaten by grasshopper eaten by frog is eaten by snake. So this is the example of grassland ecosystem. What is this? This is an example of grassland ecosystem. So our topic is energy flow in ecosystem. Energy flow कैसे करता है? एक ये रहा एक इकोसिस्टम का एग्जाम्पल। इस इकोसिस्टम में एनर्जी फ्लो कैसे करता है? So before going to the how this energy flows from one organism to another organism, we must have the knowledge about from where this energy comes from. So remember this one, energy always comes from sun. Sun is the ultimate source of energy. All type of energy comes from the sun. Sun is the natural and ultimate source of energy. ओके, सो एक इकोसिस्टम को एनर्जी देता कौन है? एक इकोसिस्टम को एनर्जी देता है सन के थ्रू लाइट एनर्जी आता है, जिस लाइट एनर्जी को ऑल प्लांट्स उसको ऑब्जर्व करते हैं, उसको ट्रैप करते हैं, और उसी को ये जो लाइट एनर्जी सन के पास से आता है उसी को ये ग्रास किस में कन्वर्ट कर देते हैं? केमिकल एनर्जी में कन्वर्ट करते हैं। और उसी केमिकल एनर्जी को ये जब हम प्लांट्स को खाते हैं या फिर कोई एनिमल प्लांट्स को खाता है तो वो केमिकल एनर्जी प्लांट्स के पास से दूसरे एनिमल को ट्रांसफ़र होता है। So sun is the ultimate source of energy. Sun provides energy in the form of light to an ecosystem. कोई भी इकोसिस्टम हो, सन ही एनर्जी प्रोवाइड करते हैं। Then remember, a single unit of a ecosystem, this is the thing. So because all plants trap this sunlight and utilize the sunlight to prepare their food, to prepare chemical energy, that's why grasses are called, all plants, not grasses, all plants are called producers. Okay, producers of ecosystem. Because why they called producer? Because they trap this sunlight and convert this light energy into chemical energy. Because they convert this light energy into chemical energy, that's why they are called producers. Or that means producers of energy. क्योंकि वो एनर्जी प्रोड्यूस करते हैं मतलब डायरेक्ट वो देते नहीं है, लेकिन लाइट एनर्जी को ऐसा एक एनर्जी, केमिकल एनर्जी ऐसा एक एनर्जी में कन्वर्ट करते हैं जिसको कि दूसरे एनिमल्स लोग ले सकें, क्योंकि दूसरे एनिमल्स डायरेक्ट सनलाइट को लेके खुद का खाना नहीं बना रहे, तो ऐसा एक वो फॉर्म में कन्वर्ट कर रहे हैं जिसको कि दूसरे एनिमल्स यूज कर सके। इसीलिए ऑल प्लांट्स, ऑल फोटोसिंथेटिक प्लांट्स आर नोन एज योर प्रोड्यूसर्स। देन द एनिमल्स who depend upon these producers are known as consumers. Okay, from this grasshopper to snake, all are known as consumers. Remember, these are consumers. Okay, generally biotic components are generally three types: producer, consumer and decomposer. Producers who produce energy, that means which trap the sunlight to produce chemical energy. Consumers which consume this energy from the producers or from other animals, and decomposers which returns back this energy into the environment, generally some microbes like fungi and bacteria. So ये हो गए consumers, grasshopper, frog, snake. हमारे इस एग्जाम्पल में grasshopper, frog, snake ये सब हो गया क्या? consumers. ये सब क्या करते हैं? एनर्जी को कंज्यूम करते हैं, एनर्जी को लेते हैं ग्रास से। जब ग्रास को ग्रासहोपर खाता है तो एनर्जी क्या होता है? ग्रास से ग्रासहोपर के पास जाता है। फिर ग्रासहोपर को जब फ्रॉग खाएगा तो फ्रॉग के पास एनर्जी कहाँ से जाएगा? ग्रासहोपर से फ्रॉग के पास एनर्जी जाएगा। फिर जब फ्रॉग को स्नेक खाएगा तब स्नेक के पास एनर्जी फ्रॉग
से जाएगा. सो ऐसे होता है एनर्जी का ट्रांसफ़र. व्हेन वन ऑर्गेनिज्म ईट्स अनदर ऑर्गेनिज्म इन एन इकोसिस्टम, देन एनर्जी फ्लो फ्रॉम वन organism to another organism. That means energy flow in the form of food. ओके, ये एक बात गया. ओके, हम लोग को अभी तक ये पता चल गया कि ग्रास होता है प्रोड्यूसर, देन ग्रास ऊपर फ्रॉग स्नेक एवरीथिंग आर नोन एज योर टर्म्स अंडर कंज्यूमर. कंज्यूमर के बीच में बात है. देन ग्रास ऊपर आज बिकॉज ग्रास ऊपर इज द हार्बीवोर. That means its nutrition depends only upon the plants. That's why grasshopper is known as your primary consumer. Remember, grasshopper is known as primary consumer. Then this frog is known as your secondary consumer. Then snake tertiary consumer, etc., etc. Okay. Then each level, this is one level. This is the level of producer. This is the level of primary consumer. This is the level of secondary consumer. So each level of ecosystem is known as trophic level. TROPHIC. Each level of the ecosystem is known as trophic level. This is the trophic level for producer. Always remember, the first trophic level is occupied by producers. Okay, always remember the first trophic level of the ecosystem, it is a short question. Always the first trophic level of the ecosystem occupied by producer. The second trophic level of the ecosystem is always occupied by primary consumer. ओके, सो इतना हमको अब तक नॉलेज मिल गया कि इकोसिस्टम क्या है, एक इकोसिस्टम का एग्जाम्पल क्या है, इकोसिस्टम में हम प्रोड्यूसर किसे कहते हैं, कंज्यूमर किसे कहते हैं, प्राइमरी कंज्यूमर कौन होता है, और ट्रॉफिक लेवल क्या होता है. ट्रॉफिक लेवल क्या होता है? ईच लेवल ऑफ द इकोसिस्टम इज नोन एज ट्रॉफिक लेवल. फिर हम देखते हैं ये ग्रास से ग्रास ऊपर जब एनर्जी ट्रांसफ़र होता है इन द फॉर्म ऑफ फूड, ये होता कैसे है. ओके, देखते हैं हम नेक्स्ट पेज में देखेंगे. सी व्हाट्स हैपन, all the potential energy consumed by the your plant or any all the potential energy consumed by any primary consumer, whatever maybe your grasshopper, maybe your frog, anyone, that potential energy not converted into flesh. okay, उतना जितना वो एनर्जी लेता है सभी एनर्जी को वो काम में नहीं लगाते. ए पार्ट ऑफ दिस एनर्जी इज एक्सक्रीटेड एज अनडाइजेस्टेड फूड एंड अनदर पार्ट इज लॉस्ट बाय रेस्पिरेशन. मान लो ये तुम्हारा ग्रास को कौन खाया? ग्रास होपर को खाया तुम्हारा फ्रॉग को खाया स्नेक. सो ऑल द एनर्जी कंज्यूम्ड बाय दिस ग्रास होपर फ्रॉम दिस ग्रास इज नॉट यूटिलाइज्ड एंड नॉट कन्वर्टेड इनटू फ्लैश. ए पार्ट ऑफ इट इज एक्सक्रीटेड एज अनडाइजेस्टेड फूड. जितना वो एनर्जी लेता है सभी को वो काम में नहीं लगाते. कुछ एनर्जी अनडाइजेस्टेड फूड के हिसाब से लिबरेट हो जाते हैं, अनडाइजेस्टेड फूड के हिसाब से, और कुछ एनर्जी रेस्पिरेशन में लिबरेट हो जाते हैं. रेस्पिरेशन, हमारा सांस गर्म लगता है इन द रेस्पिरेशन. ओके, व्हेन द लार्ज मॉलिक्यूल्स आर कन्वर्टेड इनटू स्मॉल कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर मॉलिक्यूल एक्सेट्रा, दैट प्रोसेस इज कॉल्ड रेस्पिरेशन. सो कुछ एनर्जी हमारा अनडाइजेस्टेड फूड के हिसाब से रिलीज हो जाता है, नष्ट हो जाता है, और कुछ एनर्जी हमारा रेस्पिरेशन में निकल जाता है. Then this energy transferred from one trophic level to another trophic level occurs by means of some laws. ये जो ट्रांसफ़र एनर्जी ट्रांसफ़र होता है एक ट्रॉफिक लेवल से दूसरे ट्रॉफिक लेवल को, ये कुछ लॉज के हिसाब से होता है. देयर आर टू लॉज आर जनरली which define this energy transfer. The first law is second law of thermodynamics. Second law of thermodynamics. So this energy transfer from one trophic level to another trophic level occurs by means of two different laws. First law is second law of thermodynamics. We are going to discuss about second law of thermodynamics. What does the second law of thermodynamics says? In some book it is also written energy transfer also occurs by first law of thermodynamics. कुछ बुक में से भी लिखा है कि फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स के हिसाब से भी एनर्जी ट्रांसफ़र होता है, लेकिन फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स के हिसाब से एनर्जी ट्रांसफ़र नहीं होता. फर्स्ट लॉ एनर्जी ट्रांसफ़र के बारे में कुछ नहीं बताता, हम उसके बारे में डिस्कशन कर लेंगे. पहले हम देखते हैं सेकंड लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स क्या कहते हैं. सेकंड लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स से कहता है व्हेनेवर एनर्जी ट्रांसफर फ्रॉम वन काइंड टू अनदर, वन काइंड लिख सकते हैं, वन फॉर्म FORM फॉर्म भी लिख सकते हैं, वन फॉर्म टू अनदर, देन there is increase in
increase in entropy and decrease in amount of यूजफुल एनर्जी। ओके, सो ये हो गया सेकंड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स। सेकंड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स हमको क्या कहता है? सेकंड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स हमको कहता है व्हेनेवर एनर्जी ट्रांसफ़र फ्रॉम वन फॉर्म टू अनदर, जब भी एनर्जी एक फॉर्म से दूसरे फॉर्म को ट्रांसफ़र होता है, देन देयर इज इंक्रीज इन एंट्रोपी। एंट्रोपी क्या है? एंट्रोपी होता है वेस्ट एनर्जी। वेस्ट एनर्जी, जो एनर्जी कोई काम में नहीं लगता, वेस्ट हो जाता है, बर्बाद हो जाता है, सो दैट जिसको कहते हैं एंट्रोपी। व्हेनेवर एनर्जी ट्रांसफर फ्रॉम वन ट्रॉपिक लेवल टू अनदर, देन देयर इज इंक्रीज इन एंट्रोपी एंड डिक्रीज इन यूजफुल एनर्जी। यूजफुल एनर्जी, जो जितना को काम में लगता है, जितना एनर्जी काम में लगता है, उसको कहते हैं यूजफुल एनर्जी। सो जब भी एक ट्रांसफ़र होता है एनर्जी एक फॉर्म से दूसरे फॉर्म को, सो डिक्रीज कर जाता है यूजफुल एनर्जी और इंक्रीज कर जाता है किसका अमाउंट? एंट्रोपी, या फिर वेस्ट एनर्जी इंक्रीज कर जाते हैं। तो हम ये गया तुम्हारा सेकंड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स। ये कहता है दिस वन। कुछ बुक में जो लिखा था फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स, फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स क्या कहता है? वी कैन नॉट एनर्जी नाइदर बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉयड। वी कैन नॉट क्रिएट एनर्जी नॉर डिस्ट्रॉय एनर्जी। फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स ये कहता है एनर्जी नाइदर बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉयड, इट ओनली ट्रांसफर फ्रॉम वन फॉर्म टू अनदर फॉर्म। एनर्जी को हम ना ही पैदा कर सकते हैं ना ही उसको नष्ट कर सकते हैं, उसको सिर्फ हम एक फॉर्म से दूसरे फॉर्म को ट्रांसफ़र करा सकते हैं। ये कहता है फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स। लेकिन इसके हिसाब से फ्लो नहीं होता है। तो अगर हम देखेंगे इकोसिस्टम में भी वही, हम एनर्जी को पैदा नहीं कर रहे हैं, एनर्जी जहाँ से आना चाहिए सन से वो आ रहा है, उसको वो क्या कर रहे हैं? एक फॉर्म से दूसरे फॉर्म को बदल रहे हैं। ग्रास एनर्जी से वो ग्रास ओवर को एनर्जी बदला रहे हैं। सो दिस इज ऑल्सो ए टाइप ऑफ एनर्जी ट्रांसफॉर्मेशन, नॉट एनर्जी। फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स लिखने की कोई ज़रूरत नहीं एग्जाम में, सेकंड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स लिखो, वही बेहतर है। लेकिन जानो कि फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स कहता क्या था? फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स क्या कहता था? वी कैन नॉट एनर्जी नाइदर क्रिएटेड नॉट डिस्ट्रॉयड। एनर्जी को हम बना नहीं सकते कि डिस्ट्रॉय नहीं कर सकते। इट इज़ ओनली ट्रांसफ़र फ्रॉम वन बेसिक टू अनदर बेसिक और वन फॉर्म टू अनदर फॉर्म। इसको बस हम एक फॉर्म से दूसरे फॉर्म को बदला सकते हैं। ओके, सो ये गया फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स। ये इधर कोई ज़रूरत नहीं है। सो सेकंड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स क्लियर हो गया अभी। क्या बोला? व्हेनेवर एनर्जी ट्रांसफर फ्रॉम वन काइंड टू अनदर काइंड, देन देयर इज इंक्रीज इन यूजफुल एंट्रोपी, इंक्रीज इन एंट्रोपी एंड डिक्रीज इन यूजफुल एनर्जी। काम में जितना एनर्जी लगना चाहिए उसका अमाउंट घट जाता है और जितना एनर्जी वेस्ट चला जाता है उसका अमाउंट बढ़ जाता है। ये गया सेकंड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स। देन और एक लॉ है, फर्स्ट लॉ गया, देन और एक लॉ है तुम्हारा 10% लॉ। 10% लॉ क्या कहता है? 10% लॉ ये कहता है 10% law says that if the net production of energy in plant, because plant is the producer, that is in this example here grass. So 10% law says that if the net refers to total, if the net production of energy in plant is taken to be 100 unit, then only 10% of it is consumed by प्राइमरी कंज्यूमर। प्राइमरी को मैं 1 डिग्री लिख रहा हूँ, तो प्राइमरी PRIMARY प्राइमरी लिखना, प्राइमरी कंज्यूमर full stop. Similarly 1% of it refers to total energy. 1% of the total energy is assimilated और ट्रांसफ़र, कुछ भी लिख सकते हैं, और ट्रांसफ़र टू सेकेंडरी, प्राइमरी क्या था? सेकेंडरी कंज्यूमर एंड सो ऑन। दैट मीन्स एनर्जी ट्रांसफ़र अकर्स बाय 10%. दैट मीन्स इफ़ वी एज्यूम द नेट प्रोडक्शन ऑफ एनर्जी बी 100 यूनिट। अगर हम प्लांट में देखेंगे ग्रास में अगर 100 यूनिट एनर्जी पैदा हुआ था, देन ग्रास ओवर के पास ओनली 10% ऑफ इट इज ट्रांसफर इनटू प्राइमरी कंज्यूमर। दैट मीन्स 100 का 10% कितना? 10. सो ओनली 10% ऑफ द टोटल एनर्जी प्रोड्यूस्ड इज ट्रांसफर इनटू प्राइमरी कंज्यूमर। देन इनटू सेकेंडरी कंज्यूमर 10% ऑफ इट मीन्स इसका गया
10 का 10% अगर पकड़ेंगे 1 यूनिट ट्रांसफ़र हुआ। अगर फ्रॉग से स्नेक के बारे में बात करेंगे सो 1 का 10% दैट इज़ 0.1, सो 0.1 यूनिट ट्रांसफ़र हो रहा है। सो दिस इज़ द 10% लॉसेस। 10% लॉ क्या कहता है, इफ़ द नेट प्रोडक्शन ऑफ एनर्जी इज़ टेकन टू बी 100 यूनिट, अगर हम 100 यूनिट एनर्जी प्रोड्यूस हुआ था अगर हम लेंगे, देन आउट ऑफ दैट 100 यूनिट ओनली 10% ऑफ इट इज़ ट्रांसफर्ड इनटू नेक्स्ट ट्रॉफिक लेवल, ओनली 10%। अगर 100 यूनिट देखेंगे, 100 यूनिट से प्राइमरी कंज्यूमर को गया 10%, फिर 10% से जाएगा 1%, दैट मीन्स ओनली 10% इज़ यूटिलाइज्ड एंड अनदर 90% जो हम सेकंड लॉ में पढ़े थे। सेकंड लॉ में हम सेकंड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स में क्या पढ़ा, यूज़फुल एनर्जी का अमाउंट घट जाता है। देखिए इधर भी यूज़फुल अमाउंट 10 से 100 से 10 हो गया, मतलब यूज़फुल एनर्जी कम घट गया, बढ़ क्या रहा है एंट्रोपी, वेस्ट एनर्जी। जैसे कि अगर 100 से 10 यूनिट हमारा काम में लग रहा है तो 90% हमारा एनर्जी वेस्ट चला गया। सो इसीलिए 10% ये कहता है, इफ़ वी कंज्यूम, इफ़ वी प्रोड्यूस और इफ़ वी एज्यूम नेट production of energy is 100 unit, then only 10% of it is consumed by the primary consumer, then its 10% is consumed by secondary consumer and so on. So transfer of energy occurs by 10% law. 10% refers to, if we assume that the energy production is your 100 unit, then only 10% of it is transferred into next level. Okay, so ये गया। फिर ये जो एनर्जी ट्रांसफ़र होता है उसके बारे में 2-3 पॉइंट है, उसका हम देखेंगे। ओके, क्या हमको मिला, हमको कंक्लूजन क्या मिला इस जो एनर्जी ट्रांसफ़र हमने देखा, एग्जाम्पल देखा, इससे हमको कंक्लूजन क्या मिला कि इन इकोसिस्टम, हमने इकोसिस्टम से क्या पाया कि ऑलवेज एनर्जी ट्रांसफ़र इन द फॉर्म ऑफ फूड। ओके, एनर्जी ऑलवेज ट्रांसफ़र फ्रॉम वन ट्रॉफिक लेवल टू अनदर ट्रॉफिक लेवल, फ्रॉम वन trophic level to another by means of food. ओके, ये जो एक ट्रॉफिक लेवल से और एक ट्रॉफिक लेवल को एनर्जी ट्रांसफ़र होता है, ये कैसे होता है, कौन से द्वारा होता है, किसके द्वारा होता है ना, फूड, बाय मीन्स ऑफ फूड, खाद्य खाना के मदद से होता है। खाना के मदद से या फिर इन टर्म्स ऑफ फूड एनर्जी ट्रांसफॉर्मेशन ऑकर्स फ्रॉम वन ट्रॉफिक लेवल टू अनदर, नथिंग बाय एल्स। देन सेकेंड पॉइंट में जाएगा और हमको क्या मिला, एनर्जी व्हेन ट्रांसफर फ्रॉम वन ट्रॉफिक लेवल टू अनदर ट्रॉफिक लेवल, एनर्जी व्हेन ट्रांसफर, TRANSFER, energy whenever transfer from one trophic, TROPHIC, from one trophic level to another, then there is loss in the form of heat. सो जब भी एनर्जी एक ट्रॉफिक लेवल से दूसरे ट्रॉफिक लेवल को ट्रांसफ़र करता है, वहाँ पे जो एनर्जी लॉस होते हैं वो किस फॉर्म में लॉस होते हैं, इन टर्म्स ऑफ हीट। ओके, द एनर्जी लॉस अकर्स फ्रॉम ड्यूरिंग ट्रांसफॉर्मिंग फ्रॉम वन ट्रॉफिक लेवल टू अनदर ट्रॉफिक लेवल बाय मीन्स ऑफ हीट। हीट के द्वारा एनर्जी लॉस हो जाता है और फूड के द्वारा एनर्जी एक ट्रॉफिक लेवल से दूसरे ट्रॉफिक लेवल को गया। जैसे कि एनर्जी ट्रांसफ़र हो रहा था, ग्रास से ग्रास ऊपर को ट्रांसफ़र हो रहा था, तो कौन से हिसाब से गया, जब ग्रास ऊपर ग्रास को खाएगा तभी उसके पास एनर्जी गया। सो इन टर्म्स ऑफ फूड एनर्जी ट्रांसफ़र हुआ इन टर्म्स ऑफ फूड, लेकिन एनर्जी लॉस किस टर्म से हो गया, हीट। देखिए ट्रांसपिरेशन होता है, सनलाइट फॉल होता है, ट्रांसपिरेशन होता है, एनर्जी लॉस होता है। सो ये जो एनर्जी लॉस हुआ वो किस फॉर्म में हुआ, हीट, HEAT, हीट के द्वारा एनर्जी लॉस होता है और फूड के द्वारा एनर्जी ट्रांसफ़र होता है। देन नेक्स्ट पॉइंट हम जाएंगे, थर्ड पॉइंट जाएगा, द सोलर एनर्जी एंटर इनटू द लिविंग वर्ल्ड। ओके, as I said earlier, sun is the ultimate source of energy, that's why solar energy entered in living world, entered in living world, solar energy entered into living world and back to the non living world in the form of heat, not in the form of light. then सन के द्वारा जो एनर्जी आया था वो किस फॉर्म में आया था ना, लाइट फॉर्म में आया था। एनर्जी एंटर इनटू इकोसिस्टम इन द फॉर्म ऑफ योर लाइट,
लाइट एनर्जी को प्लांट ने ट्रैप किया था, इसीलिए एनर्जी एंटर इनटू द इकोसिस्टम इन फॉर टर्म्स ऑफ लाइट, बट एनर्जी लिबरेटेड बैक इन टर्म्स ऑफ हीट। इकोसिस्टम को एनर्जी जाता कहाँ से? हीट। ये इसके भी ग्रास ओवर से भी हीट की मदद से एनर्जी ट्रांसफ़र हुआ, और फूड की मदद से फ्रॉग के पास एनर्जी गया, फिर फ्रॉग से हीट के थ्रू एनर्जी लॉस हुआ, और खाना फूड के थ्रू स्नेक के पास एनर्जी गया। सो ये 3 पॉइंट हमको कंक्लूजन में मिलता है कि एनर्जी ऑलवेज ट्रांसफर फ्रॉम वन ट्रॉपिक लेवल टू अनदर ट्रॉपिक लेवल बाय मीन्स ऑफ फूड, एंड एनर्जी लॉस अकर्स इन टर्म्स ऑफ हीट, एंड एनर्जी कम्स इन टर्म्स ऑफ सोलर एनर्जी, दैट मीन्स योर कम्स इन टर्म्स ऑफ लाइट इन द फॉर्म ऑफ लाइट, बट लिबरेटेड बैक इन टू दिस नॉन लिविंग वर्ल्ड इन टर्म्स ऑफ हीट। नॉन लिविंग थिंग्स वर्ल्ड से लिविंग वर्ल्ड को आता है लाइट के फॉर्म से, लेकिन लिविंग वर्ल्ड से नॉन लिविंग वर्ल्ड को जाता है हीट के फॉर्म से। ओके, तो ये गया हमारा 3 कंक्लूजन। अगर हम डायग्रामेटिक वे से दिखाना चाहें तो डायग्रामेटिक वे से भी हम दिखा सकते हैं कि जैसे कि यह गया सन एनर्जी देता है, एनर्जी को प्रोड्यूसर, सॉरी CER PRODUCER प्रोड्यूसर। सो एनर्जी को प्रोड्यूसर ट्रैप करता है, फिर जब ये प्रोड्यूसर को प्राइमरी कंज्यूमर खाता है, सो एनर्जी उसके पास आता है, लेकिन इस जगह पे ओनली 10% फ्लो करता है, 90% लॉस हो गया। वैसे प्राइमरी को जब सेकेंडरी कंज्यूमर खाता है 10%, उसका 10% 1 यूनिट जाता है, और 90% एनवायरनमेंट को लॉस हो गया। तो ये सेकेंडरी को जब टर्शियरी कंज्यूमर खाता है तो 10% ट्रांसफ़र हुआ, 90% लॉस हो गया। फिर जब ये प्रोड्यूसर, प्राइमरी कंज्यूमर, टर्शियरी कंज्यूमर सबका डेथ एंड डिके होगा, तो फिर से ये सब कहाँ पे आ जाएंगे तुम्हारा? डिकम्पोजर के थ्रू। डिकम्पोजर जो बैक्टीरिया फंगई होते हैं, डिकम्पोजर के थ्रू ये फिर से तुम्हारे सॉइल में आ जाएगा, फिर इसी थ्रू में भी कुछ न्यू एनर्जी लॉस हो जाएगी। ओके, ये गया तुम्हारा डायग्रामेटिक फॉर्म। डायग्रामेटिक फॉर्म में गया जस्ट सन इज द सोर्स ऑफ एनर्जी, फ्रॉम सन लाइट एनर्जी कम्स इनटू द environment, and this producer, their plant and grasses trap this energy and convert into chemical energy. This chemical energy get eaten by the primary consumer and converted into the primary consumer. Only 10% is transferred and 90% is lost. When this primary consumer eaten by the secondary consumer, energy transferred from primary consumer to secondary consumer, and then also some amount of energy lost. So in this way transformation of energy occurs from one trophic level to another trophic level. Then when these plant and animals, organisms die, then their all nutrients decomposed and again return back into the abiotic component, that is into your soil. In this process also some amount of energy loss in the form of heat. This is the diagrammatic representation of the energy transfer. ओके, सो ये गया तुम्हारे एनर्जी ट्रांसफ़र के बारे में। हमने देखा इकोसिस्टम का मतलब क्या है। इकोसिस्टम क्या है? ये नेचुरल यूनिट है जो बायोटिक कम्युनिटी और एबायोटिक एनवायरनमेंट को लेकर बना है। इधर एनर्जी का ट्रांसफ़र कैसे होता है? फूड के मदद से। जब एक एनिमल या फिर एक प्लांट को दूसरा प्लांट खाता है, दूसरा एनिमल खाता है, तब जाके ये एनर्जी ट्रांसफ़र होता है बाय मीन्स ऑफ फूड। फूड के हिसाब से एनर्जी ट्रांसफ़र होता है, और लॉस किस फॉर्म में होता है? हीट फॉर्म में। अच्छा, आता कहाँ से? आता लाइट एनर्जी के थ्रू। लाइट के थ्रू आता है, फूड के थ्रू ट्रांसफ़र होता है, और हीट के थ्रू लॉस होता है। ये 3 बात हमको याद रखना है। ओके, सो दिस मच इन दिस वीडियो। आई होप यू विल गेट क्लियर फ्रॉम दिस वीडियो। उम्मीद करता हूँ कि तुम्हारा डाउट क्लियर हुआ होगा कैसे एनर्जी ट्रांसफ़र होता है इन द इकोसिस्टम। सो दिस मच इन दिस वीडियो. Okay, so we'll discuss next in the further next class. Okay, so thank you for everyone. Thanks for watching. Discussing is end. So thank you everyone for watching.